बंगाल के सियासी रण में ममता बनर्जी ने बीजेपी के हमलों का चुन चुन कर जवाब दिया है। पीएम ने टीएमसी को तोलाबाजों की पार्टी कहा था। कल ममता बनर्जी ने तोलाबाज शब्द का जवाब दंगाबाज से दिया है। पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट राज की बात की थी, कट मनी कट कल्चर की बात की थी। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कैट मनी और रैट मनी जैसे शब्द निकाले। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন, আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোরসে বলে, তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। दीदी ने हुगली के उसी मैदान से बीजेपी को चैलेंज किया जिस मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी गरजे थे और टीएमसी के तोलाबाजों की बात की। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? মা বোনেরা, 2 दिन से दीदी गुस्से से भरी थी। आज उसी हुगली में गुस्सा निकाल दिया जिस हुगली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट का राज बताया था, कट मनी कल्चर की बात की थी। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। हुगली के डनलॉप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सभा किया, वहीं पे ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर्स ने आज उनका हाथ थोड़ा और उन्होंने यहां से नरेंद्र मोदी को अटैक करके कहा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हुगली में एक के बाद एक दीदी के तीर चल रहे थे। पूरी स्पीच में पीएम की उन बातों पर पलटवार था जिसमें पीएम ने बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार से विकास रुकने की बात की थी। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। বলে মমতা জি ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুকটুকি ডুকটুকি। আমি প্রধানমন্ত্রী। दीदी का गुस्सा अभी और बाकी था। पिछले 3 दिन से उनके भतीजे के परिवार पर शिकंजा है। कोयला तस्करी केस में उनकी बहू से सीबीआई ने पूछताछ की है। একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। জিজ্ঞেস করুন না, দুর্গাপুরে হোটেলটা পুরো ভাড়া নিয়েছে। হোটেলটা কার? কোন কোল মাফিয়ার? বিজেপি নামটা বলবো? আমার মুখে এত ছোট নাম বলার শোভা পায় না। সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি
ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে দেখো কজনকে গ্রেপ্তার করবে, জেল ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবে। कोयला केस में दीदी पिछले 3 दिन से ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन हुगली में करीब 40 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी ने 3 दिन की कसर निकाल दी। जो नहीं बोलना चाहती थी वो भी बोल दिया। আপনি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারেন, আমি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারি না। আমাকে একটা কথার মধ্যে একটা লাগাম রাখতে হয়। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि हुगली के मैदान से ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, पीएम के प्रहार पर क्या पलटवार करेंगी, क्योंकि पीएम ने तो हुगली में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, असल परिवर्तन का नारा दिया था। परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। আমার শপথ। ये उस चुनावी भिड़ंत की चिंगारियां हैं जिसमें कोई किसी से कम नहीं। ममता बनर्जी लोहे से लोहा काट रही, बीजेपी की आक्रामक रणनीति का जवाब उसी अंदाज में दे रही। তুমি এই আদিসপ্ত গ্রামে যদি আমায় গাছ করে सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट को सेना प्रमुख ने भारत की रणनीति की बड़ी कामयाबी और जीत बताया है। इससे विवाद के दूसरे इलाकों पर भी चीन बात करने पर मजबूर होगा। एक वेबिनार में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पैंगोंग की जीत को समझाने के बाद पाकिस्तान को भी हरकतों से बाज आने की 2 टूक चेतावनी दी है। भारत की फौलादी रणनीति से उखड़े चीन के कदम। पीछे हटे ड्रैगन पर अब भी भारत की पैनी नजर। एलएसी को संभाल लिया, अब एलओसी पर नजर। सेना प्रमुख से सुनिए सुरक्षा का एक्शन प्लान। रणनीतिक लिहाज से पैंगोंग में महीनों तक अड़ने के बाद आखिर ड्रैगन को मात खाकर कदम पीछे हटाने पड़े। चीन को समझौते की टेबल पर बैठना पड़ा और इसके बाद पैंगोंग झील के आसपास के इलाकों समेत ऊंची चोटियों को खाली करना पड़ा। ये सब देश और दुनिया ने देखा, लेकिन अब इसके आगे की रणनीति सेना प्रमुख की जुबानी सुनिए। जनरल नरवणे ने चीन के पीछे हटने को भारत की रणनीति की बड़ी कामयाबी बताया है। ऐसी कामयाबी जो विवाद के बाकी इलाकों में भी चीन को अपनी हद में आने पर मजबूर करेगी। Whatever we did as a government, as a nation, has shown that the resolve that we have in maintaining our interests foremost. And I think with this whole of government approach, our relations with China will remain on I won't say on an even keel, but our relations with China would develop along the path or route that we wish it to develop. चीन को घुटनों पर लाने के बाद भी भारत की फौज पूरी तरह सतर्क है। उसे चीन की हर पैंतरेबाजी और भरोसा तोड़ने की आदत का एहसास है। सरहद पर छोटी छोटी हरकतें करके जमीन कब्जाने वाले चीन को सेना प्रमुख ने 2 टूक कहा है।
कि अब ये पैंतरेबाजी नहीं चलेगी। Engagement process, and in fact all agreements which have been signed earlier with China, or for that matter any agreement which is signed with any country, is premised on the fact that it will be observed in letter and spirit. So similarly, this agreement is also premised on the same fact, but as we mentioned, that we will trust but we will verify, and we have put our systems in place to make sure that there is no reoccupation of these heights, and it is part of the agreement. So if it is violated, then you have violated the spirit behind which you have signed on the dotted line. So we can only hope that the PLA and China adheres to these principles and these agreements in toto. भारत के रणबांकुरों ने बर्फीले रण क्षेत्र में चीन को उसकी हद में ला दिया, तो उसके मोहरे पाकिस्तान की भला क्या बिसात है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को भी दो टूक चेतावनी दी है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। LAC से लेकर LOC तक पर हमारी मजबूती भरोसा जगाती है। भरोसा ये कि चट्टानी हौसले के साथ डटी सेना की निगहबानी में हमारी सरहदें पूरी तरह महफूज हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के साथ टीके लगाने के बाद अब मुहिम को जनता तक लाया जा रहा है। 1 मार्च से बुजुर्गों को टीके लगने शुरू होंगे। कोरोना पर अब सीधी जंग होगी शुरू। वैक्सीन के लिए आ गया जनता का नंबर। 1 मार्च से हजारों केंद्रों पर टीकाकरण। एक तरफ देश के 5 राज्यों में कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है, तो ठीक उसी वक्त कोरोना पर वार करने की मुकम्मल तैयारी भी हो चुकी है। पूरे देश में एक साथ जनता के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। देखिए क्या है सरकार का पूरा एक्शन प्लान। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिनको कोई बीमारी है। 10,000 सरकारी केंद्रों में वैक्सीनेशन फ्री होगा। 20,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में आपको कीमत चुकाकर टीका हासिल होगा। निजी अस्पताल कितना पैसा लेंगे, ये 2-3 दिन के भीतर तय हो जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। केंद्र का सटीक प्लान तैयार है। सरकार वैक्सीन निजी कंपनियों से खरीदकर राज्यों को देगी। 14 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बेहतर बात यह है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। 1,07,67,000 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। सरकार ने सही वक्त पर टीकाकरण में निजी सेक्टर को शामिल कर लिया है। इसमें बड़ी आबादी तक तेजी से टीका पहुंचाना मुमकिन होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
बंगाल में अब सियासी दांवपेच के बीच कोरोना पर भी सियासत होने लगी है। ममता बनर्जी ने फ्री वैक्सीन पूरे राज्य के लोगों को लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी है। पीएम को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी ने मांग की है कि केंद्र पूरे पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन दिलाए। बंगाल के चुनावी रण की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी जोर आजमाइश चरम पर है। हर दांव खेला जा रहा है, हर पासा फेंका जा रहा है। सियासत के इसी संग्राम में अब बंगाल में एंट्री हुई है वैक्सीन की। जी हां, अब बंगाल में कोरोना की वैक्सीन भी सियासत का सबब बन रही है। ममता ने खेला सियासत का वैक्सीन दांव। केंद्र से मांगी पूरे राज्य के लिए वैक्सीन। ममता की दलील, सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ये वो चिट्ठी है जो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी है। इसमें पूरे राज्य के लिए वैक्सीन दिलाने की मांग की गई है। ममता ने लिखा है, हम राज्य के हर शख्स को फ्री वैक्सीन देना चाहते हैं। चुनाव से पहले सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। चुनाव और बढ़ते कोरोना के मद्देनजर ये जरूरी है। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद में मदद करे। केंद्र संबंधित एजेंसियों से ये वैक्सीन दिलाए। जाहिर तौर पर किसी एक राज्य को करोड़ों की तादाद में वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर देना संभव नहीं है, और ममता सूबे के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि वो सबको फ्री वैक्सीन देना चाहती है, लेकिन केंद्र की मदद के बिना ये संभव नहीं है। बीजेपी ने भी ममता के दांव को समझ लिया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने कुछ आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की कि यह सियासी दांव है। मालवीय ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने ज्यादा वैक्सीन के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन क्या बंगाल ने वो सारी वैक्सीन इस्तेमाल कर ली जो उसे दी गई थी? शर्मनाक सियासत। अब वो आंकड़े देखिए जो मालवीय ने दिए हैं। उनका कहना है कि बंगाल को 22,51,800 कोविशील्ड वैक्सीन दी गई थी। इसमें से सिर्फ 8,26,290 इस्तेमाल की गई, यानी 36.7%। इसी तरह 4,97,760 को वैक्सीन दी गई, लेकिन इस्तेमाल हुआ सिर्फ 63,380, यानी सिर्फ 12.7%। अगर ये आंकड़े सही हैं तो साफ है कि वैक्सीन को भी सियासी दांव के दौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।